So as you already know that we have started the trigonometric topic and we have completed 3-4 examples from the practice set 7.1. Okay, so this is the next question from the proof question. Proof that and the question number 5th, it is given that cot theta plus tan theta equal to cosec theta into sec theta. We have already completed 4 questions. Okay, I know that this question will be difficult for you because the formula is very important for this chapter. Okay, as you don't know the formula, you will not get the answer, you will not get the solution, and you can't understand the solution. So before understanding this solution, you have to be remember the formula. In the last previous lecture, and already I have told you that you have to be remember the formulas, you have to learn the formulas, then only you can understand this topic. Otherwise this topic will be gone from your syllabus, you can't understand. Okay, so we'll go for the next example, that is, it is given that cot theta plus tan theta equal to cosec theta into sec theta. So first of all we have to take LHS, that is left hand side. Okay, left hand side is given that cot theta plus tan theta. और अब हमें प्रूफ क्या करना है, LHS का टर्म लेके we have to prove that RHS, that is cosec theta into sec theta. Now how will you prove? So first of all we have to write the ratios here. ठीक है, we have to write the ratios of cot theta, we have to write the ratios of tan theta. So there is the formulas for cot theta and tan theta. For the formula for the cot theta, there is a formula of cos theta upon sin theta. Okay, ये रेशियो का फॉर्मूला है. और tan theta का फॉर्मूला क्या है, sin theta upon cos theta. Now we'll take cross multiplication here. Okay, what I did here, okay, first of all we have to take LHS. After taking LHS we have to use the formula. The formula for cot theta is cos theta upon sin theta. For the formula of tan theta there is a formula sin theta upon cos theta. Now we have to take the cross multiplication here. So cos theta into cos theta will give you cos square theta plus sin theta into sin theta will give you sin square theta upon sin theta into cos theta will be same, sin theta into cos theta. Okay, what we have done here, we have done the cross multiplication here. Cos theta into cos theta is cos square theta plus sin into sin is sin square theta, and the denominator term will be multiplied. Now you can see here in the numerator, okay, it gives you the identity, that is cos square theta plus sin square theta. So if you will take arrangement of this, you will get sin square theta plus cos square theta is 1. Okay, तो हमें आइडेंटिटी पता है ऑलरेडी, दैट इज सिंस sin square theta plus cos square theta क्या होता है, 1 होता है. यस और नो? तो अब हम इसको क्या करेंगे, बराबर मैनेज करेंगे. cos पहले दिया है, sin बाद में दिया है, तो हम sin को फर्स्ट में लिखेंगे, sin square theta plus cos square theta upon sin theta into cos theta. Now you can see it becomes an identity. मैंने क्या किया, ऑलरेडी व्हाट वी हैव डन, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिखा था, इसको रिवर्ट करके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा. अंडरस्टूड? नाउ एंड वी नो दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज गिव यू 1. ठीक है, सो दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा. आफ्टर दैट 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा इज सेम. ओके, ये करे बाद अब इसको सेपरेट करेंगे. This is in multiple, this become 1 upon sin into cos is same. Now we'll separate this, then 1 upon sin theta is different into 1 upon cos theta will be different. Separate कर दिए दोनों को. Okay, 1 upon sin is separated, 1 upon cos is separated. After that 1 upon sin theta become cosec theta, this is the ratio, and 1 upon cos theta will become sec theta. Okay, these are the another formulas of trigonometric ratios. दैट्स वाई आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूले. ये जब चीज़ें जो चेंजेस हो रही है ना, ये सब फॉर्मूले से चेंजेस हो रही है. अगर तुमको फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो ये चेंजेस कैसे होगा, यू डोंट अंडरस्टैंड. अब मैंने क्या किया, 1 अपॉन साइन की जगह पे कॉसेक लिख दिया एंड 1 अपॉन कॉस की प्लेस पे सेक लिख दिया. अब जिसको फॉर्मूला ना पता रहेगा वो कन्फ्यूज हो जाएगा, हाउ इट बिकम कॉसेक एंड सेक. बट जिसको फॉर्मूला पता रहेगा दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड. ओके, दे नो दैट 1 अपॉन साइन थीटा का अल्टरनेट फॉर्म में कॉसेक, 1 अपॉन कॉस का अल्टरनेट फॉर्म में सेक. ओके, तो अब ये चेक करो RHS के इक्वल है. ओके, सो व्हाट विल राइट हियर, देयरफॉर द LHS साइड इज इक्वल्स टू RHS साइड. आ गया बराबर इक्वल, समझ में आ गया. तो अभी हमने क्या क्या किया इसके अंदर फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ.
कॉट थीटा प्लस टाइन थीटा था LHS में, तो हमने कॉट का फॉर्मूला लेके कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इधर हमारे पास कॉट का एक फॉर्मूला है, तो कॉट थीटा इज नथिंग बट, साइड में ऐसे लिखने का अगर तुमको समझ रहा नहीं तो फॉर्मूला कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस अपॉन साइन, वो लिख दिए। और टैन का फॉर्मूला क्या है, तो इधर हम लिखना है टैन थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वो फॉर्मूला इधर यूज़ किए। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन हियर, देन वी हैव टू टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर, ठीक है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस विल बी सेम साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड विथ दिस विल बी मल्टीप्लाई साइन इंटू कॉस। आफ्टर दैट आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट बिकम्स आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास और एक फॉर्मूला आइडेंटिटी का, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, बट यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करे बाद साइन को आगे लिखा, कॉस को बाद में लिखा। अब देखो सिंपल एडिशन में 3 + 5 लिखो या 5 + 3 लिखो, आंसर तो एक ही आएगा 8। तो ये मैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर प्लस कॉस को लिखो, दैट इज नथिंग बट देयर विल बी नो चेंजेस, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया, दिस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ 1, तो ये रिप्लेस हो गया 1 में, और नीचे का टर्म एज इट इज़ साइन इंटू कॉस। आफ्टर दैट वी हैव सेपरेटेड दिस, 1 अपॉन साइन इज सेपरेट, 1 अपॉन कॉस इज सेपरेट, देन 1 अपॉन साइन कॉसेक बन गया, तो हमारे पास इधर फॉर्मूला है, सो वी कैन राइट हियर 1 अपॉन साइन थीटा इज नथिंग बट कॉसेक थीटा, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है 1 अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हमने इधर अप्लाई करे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला अप्लाई करे बाद 1 अपॉन साइन बन गया कॉसेक इंटू मल्टीप्लीकेशन विल बी सेम एंड 1 अपॉन कॉस बिकम सेक, and after getting this function, so you can compare with RHS, so this answer is same, that means LHS equal to RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। now we'll go for the next example। now here this is the next example from the proof that section from the trigonometry, that is 1 upon sec theta minus tan theta equal to sec theta plus tan theta। अब ये हमें रैशनलाइजिंग करना है, तो LHS का टर्म दिया है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, और RHS में हमें प्रूफ करना है sec थीटा प्लस tan थीटा। so what we will do here, so first of all we have to write left hand side, that is 1 upon sec थीटा minus tan थीटा, so this will be same 1 upon sec minus tan। अब क्या करना है, रैशनलाइजिंग करना है। रैशनलाइजिंग में क्या करते हैं, जो sec थीटा माइनस tan थीटा डिनोमिनेटर का टर्म है हमारे पास, ओके, यही टर्म का कॉन्जुगेट लेना है। अब कॉन्जुगेट मतलब क्या, ये sec थीटा माइनस tan थीटा का अपोजिट टर्म, तो क्या आता है sec प्लस tan, वही टर्म से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड विथ आल्सो sec थीटा प्लस tan थीटा। अब मल्टीप्लाई करे बात, हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, sec प्लस tan इंटू 1 sec थीटा प्लस tan थीटा, ओके, अपॉन sec माइनस tan इंटू sec प्लस tan। अब हमने क्या करें, कॉन्जुगेट करने के लिए sec माइनस tan का अपोजिट sec प्लस tan से मल्टीप्लाई करें, sec प्लस tan से डिवाइड करें, तो sec प्लस tan इंटू 1 इज sec प्लस tan, उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो व्हाट यू विल गेट, ब्रैकेट sec थीटा माइनस tan थीटा, ओके, इन द नेक्स्ट ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा। सो व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव गॉट इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, व्हाट वी हैव डू हियर, we did multiplication, sec plus tan into 1 is sec plus tan, then this bracket will be multiplied। after multiplying this bracket, so you can see this bracket is if you observe these two bracket, you can see this is the type of identity, this is the type of identity, which identity, so you have already knows that identity which is a minus b and a plus b। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनता है, यस और नो। सो दिस आइडेंटिटी, ये टाइप की आइडेंटिटी यहाँ तुमको दिखाई दे रही है, यस और नो। सो दिस इज फॉर्म ऑफ ए माइनस बी एंड दिस इज फॉर्म ऑफ ए प्लस बी। तो अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, ओके, तो सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन, तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये ऊपर का पार्ट सेम रहेगा, ओके, सेक थीटा प्लस टेन थीटा विल बी सेम, अपॉन ये दोनों का ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू विल गेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सो व्हाट यू विल गेट, सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1, और सेक प्लस tan अपॉन 1 क्या होता है, सेक प्लस tan, कि 1 डिवीजन में से चले जाएगा, तो आंसर विल बी सेक थीटा प्लस tan थीटा, आ गया इक्वल। सो दिस इज नथिंग बट योर RHS, चेक कर लो,
तो 1/sec माइनस tan इक्वल टू sec प्लस tan पूछा था, तो इधर भी sec प्लस tan आया। अंडरस्टूड? सो इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने 1/sec माइनस tan लिखे, तो वो 1/sec माइनस tan लिखे बाद इसका रैशनलाइजिंग करना है। रैशनलाइजिंग में क्या करते, जो भी डिनोमिनेटर का टर्म रहता है उसका अपोजिट टर्म लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। तो sec माइनस tan का अपोजिट sec प्लस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा, वही टर्म से मल्टीप्लाई करना है, वही टर्म से डिवाइड करना है, सेम टर्म को। ओके, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करे बाद इसको sec प्लस tan इंटू 1 इज sec प्लस tan एंड sec माइनस tan इंटू sec प्लस tan। ओके, तो हियर यू कैन सी, ओके, वो न्यूमरेटर टर्म में एज इट इज टर्म मिला, 1 से मल्टीप्लाई किया तो sec प्लस tan इंटू 1 इज sec प्लस tan। बट इफ यू सी इन द डिनोमिनेटर, सो यू कैन सी sec माइनस tan इंटू sec प्लस tan, दो ब्रैकेट लिखा। ये दोनों ब्रैकेट लेने के बाद अगर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक आइडेंटिटी का फॉर्मेट दिख रहा। कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आइडेंटिटी का फॉर्मेट क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो sec प्लस tan विल बी सेम, sec माइनस tan इंटू sec प्लस tan इज sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। बट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू होता है 1। तो ये आइडेंटिटी का वैल्यू है, तो मेरे साइड में लिखा के देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1। तो इधर हम लोग ने लिख दिए 1 डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर का टर्म sec प्लस tan इज सेम, डिनोमिनेटर में ये बन गया 1। तो एनीथिंग अपॉन 1 इज सेम टर्म, तो sec प्लस tan अपॉन 1 इज sec प्लस tan विच इज इक्वल टू RHS। So this complete the second example. Now we'll go for the next example, question number 3. Now here this is the next example, third question, that is sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta equal to 1 minus 2 cos square theta. अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लो, यहाँ sec लिखा हुआ है बट वो sec नहीं है, that is sin raised to 4 theta, और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा है sec raised to 4 theta. So you have to correct this question. Okay. So here you have to correct this question, that is it is given sin raised to 4, okay, but in your textbook it is given that sec raised to 4. So you have to correct this question. Okay. So अभी यहाँ हम लोग को जो दिया है टर्म, तो LHS में कौन सा टर्म दिया है? So you can see sin raised to 4 minus cos raised to 4, और हमें RHS में क्या प्रूफ करना है? 1 minus 2 cos square थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लिखे sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta. After writing this, so this is the fourth power, so we can separate it, sin square theta raised to 2 minus cos square theta raised to 2. तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 होता, तो मैंने 4 को स्प्लिट किया इन 2 वेज, 2 to the power 2, 2 to the power 2, मतलब 4 को 2 into 2 में स्प्लिट किया, तो sin square raised to 2 minus cos square raised to 2. अब ये फॉर्मेट तुमको दिखेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा, यस और नो? तो अभी हम लोग ने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखे है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी, यस और नो? तो क्या होता है फॉर्मूला? ब्रैकेट a माइनस बी इंटू a प्लस बी. So here sin square is a and cos square is your b. So after using this formula what you will get? sin square theta minus cos square theta एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा sin square theta प्लस cos square theta, यस और नो? तो ये बन गया तुम्हारा a माइनस बी का फॉर्मेट, ये बन गया तुम्हारा a प्लस बी का फॉर्मेट, यस और नो? आफ्टर गेटिंग दिस टू फॉर्मेट, बट दिस बिकम योर आइडेंटिटी, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बन रहा है. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1. क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बनता है. तो इधर हमारा फिर से एक फॉर्मूला बनेगा आइडेंटिटी. सो विच आइडेंटिटी हियर इट विल गिव यू, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज अगेन 1. तो इसको बना देंगे 1. ओके, तो ये 1 बने बाद यहाँ का पार्ट सेम आ जाएगा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ के ब्रैकेट में आ जाएगा 1 इंटू दिस ब्रैकेट. तो sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इंटू 1, यू विल गेट सेम ब्रैकेट, दैट इज sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा. ओके, आफ्टर दैट sin स्क्वायर थीटा इज सेम. अब RHS में देखो हमें प्रूफ क्या करना है, अभी ये तो हमको sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर मिला और हमें प्रूफ करना है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर. तो हमें क्या करना है, इधर एक cos तो ऑलरेडी है, हमको ये sin थीटा को cos थीटा में चेंज करना है. हमें क्या करना है, दिस sin थीटा कन्वर्टेड इनटू cos थीटा. तो 1 cos इज ऑलरेडी देयर एंड वी वांट 2 cos स्क्वायर थीटा RHS में. तो हमारे पास और एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर को अल्टरनेट करने के लिए, यही आइडेंटिटी में से बनेगा. अपने आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है ना, तो ये cos को उधर शिफ्ट करो, तो यू विल गेट अनदर फॉर्मूला, दैट इज sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो, कैसा बना, इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, मैं सिर्फ लेफ्ट साइड में फॉर्मूले लिखा रहा तुमको समझने के लिए, तो कॉस को उधर शिफ्ट करो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनता, तो हम लोग ये साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, यस और नो, सो ये रिप्लेस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी व्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी सेम, ओके, देन आफ्टर दैट 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये -2 बना कैसा, तो ये सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन है, कैसा, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस कॉस माइनस क्या होगा -2 कॉस, जैसा अगर मेरे पास सिंपल अलजेब्रा में -x है, दो पार्ट है x की, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको -2x, यस और नो, तो उसी तरह में मेरे पास -x की जगह पे अगर माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा है, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट -2 कॉस थीटा, yes or no, so same way we have added these two function minus cos square theta that is give you 1 minus 2 cos square theta and which is equal to RHS, so hence we have completed this theorem LHS equal to RHS, understood, कैसा किए, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले हमने क्या किया sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta था, तो we have splitted this function, कैसा किए, sin square raised to 2 minus cos square raised to 2, after that you can see this sin square is a and cos square is b, so this will give you the formula that is a square minus b square, okay, तो a square minus b square का फॉर्मूला का पार्ट है, इधर फॉर्मूला a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी, तो हमने इसको स्प्लिट करे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आफ्टर दैट साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी सेम, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, इधर 1 लिख दिया, फिर इसके बाद 1 इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर विल गिव यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, बट RHS में हमें क्या प्रूफ करना है, वहाँ चेक करना है, ऑब्जर्व करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर मुझे एक कॉस और एक साइन है, तो मुझे यहाँ साइन को रिप्लेस करना है, तो साइन को रिप्लेस करने के लिए साइन को कॉस में चेंज करना है, तो ये जो आइडेंटिटी है, यही आइडेंटिटी में से हमको साइन मिलेगा, कैसा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखा मैंने 1, देखो उधर, ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर सेम, ये कॉस को उधर शिफ्ट करूंगा, सो व्हाट यू विल गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यू आर गेटिंग, सो सेम वैल्यू यू हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी सेम, माइनस कॉस क्या होता है -2 कॉस, जैसे मैंने फंक्शन बताया माइनस कॉस थीटा -2 कॉस थीटा होता, सो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव यू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1 विल बी सेम, माइनस माइनस इज प्लस, minus cos is -2 cos square theta, therefore LHS equal to RHS. So with this we have completed the third example. So from the practice set 7.1 we have completed almost example, only 3-4 questions are left to complete this chapter. So in the next lecture we will finish this chapter, that is trigonometry, okay. So I hope you understood this example, and one thing again I am repeating that you have to learn the formula for this chapter, okay. Thank you so much.